फ्रेम का क्या फ्रेम सर एवरीवन हियर Ramji one with Ramji. या रामजी पाजी सलेश सर कहाँ रहा है? अली भाई थोड़ा मैम हो या एवरीवन थैंक यू रामजी सर कहाँ जा रहा है यार? बजाऊं हाँ थैंक यू सर एक जितेंद्र सर थैंक यू हाँ सर सर थैंक यू सर Eleven जाए. सर एक रामजी पाजी थैंक यू सर आ जाइए थैंक यू हाँ करते ना सर एक सोलो पिक्चर आप करनी है सर विजुअल फोटो सर रामजी यस कुमार सर थैंक यू आ गया ये वाले चलिए आ गया जल्दी कर सर एक सर एक भाई क्या कहेंगे आप आज दिल रोने लगा के लिए आए आप that's it's Valentine month it's a beautiful track by Kumar Sanu. Absolutely. Kumar Sanu, कभी कभार कहते हैं ना नाम काफी ये बस वही सिचुएशन है राम जी coming together with Ali and Parvati. Ali is a dear friend. Ram ji, you know, everyone knows him. And Kumar sir, I guess जब होता है ना कि एक इंसान वापस आता है अभी पठान में शाहरुख वापस है यहाँ हमारे साथ कुमार सानू वापस है everyone's excited. Romantic songs, it's his thing. उनकी आवाज़ में और वो अल्फाज it's going to be fun. गानों की बात की जाए हमें आपको खुद कैसे गाने पसंद हैं? I myself personally love romantic songs, Hindi और पंजाबी गाने सुनता हूँ. You all have grown up listening to Kumar Sanu songs. Absolutely, Which one is your favorite that you can recall of right now? Right now, I'm sorry, I'm not going to recall anything. Right now, अभी दिल भी रोने लगा is going to be my favorite, and it's going to be everyone's favorite in a short while. Once it's out and everyone's listening to it, a lot of reels are going to be made. It's going to be fun.
Thank you so much. Yes. दिल रोने लगा, which is Kumar Sanu, is directed by Ramji and featuring Ali Hussain and Pallavi. What do you have to say? कुमार शानू जी के बारे में क्या बोलें? We have grown up on his voice, on his style of music. He literally lives in the blood of millions of Indians worldwide. He's beyond a legend. So I'm sure this is going to be equally extraordinary, piece of work. It is going to be another masterpiece. I have absolutely no doubts about it. And Ramji, of course, I fondly call him my Bandhu. Known him for a very, very, very long time. I've seen his style of directing the videos. The kind of stuff he's done worldwide, in India, Dubai, Middle East, parts of Europe. He has a very different take. He creates a video in such a way that the video becomes another character in the album. So I'm looking forward. Honestly, I'm yet to hear the track, but I'm eagerly waiting forward to have a look at it. And I'm sure it is going to create and break a lot of records. Wish you all the best, Ramji Gulati, Kumar Sanu ji, and the entire team. God bless. Thank you. Start. Parvati, Dil Rone Laga. So firstly, what is the Dil crying for? Dil is crying for love. Is it that simple to sum up? Yeah, I think for me, love is the most powerful emotion. And like I told earlier, for me it was not even acting. When the lyrics have the meaning of love or the music has love in it, it comes naturally. So love makes you cry, love makes you love, both. So love makes you miss someone, so you feel like crying. Love makes you happy. So You mentioned about lyrics, it's very refreshing to find such lyrics, which the song has a 90s vibe. Today, obviously, given that music doesn't have that much significance in films today, so how pleased are you to be associated with a song, that basically, it beats for its words and the music, these things. I am a very old school person inside. So for me, I love 80s music, 70s music, 90s music. I still listen to very, very old music. So I think meaning-wise, I think songs in the past had very, very strong lyrics. So this song for me was taking me to the old songs. So I think we all need that break, because right now the world is changing so fast. We have to go back to those beautiful lyrics, meaningful songs, and this is one of them. Very simple song, but very meaningful. So for me, it gave me that feel, and I love it. You obviously, I think you were born in the Middle East. Yes. So I don't know how much of an influence were, the Hindi music then for you, growing up as a child. My dad has always been like a old music person. He loves Kishore Kumar, Mohammed Rafi, and Lata Mangeshkar. And my father made me, he sent me to literary classes to learn certain songs. And so my dad has been a crazy fan of music, which is why I listen to that era ka songs a lot. So. But any personal Kumar Sanu favorites that spring to your mind now? Yeah, see, I literally grew up listening to a lot of his songs. So when I heard Kumar Sanuji's name, I was like, there are so many songs. Even right now, half of the remix we have are like his songs. So his songs are like evergreen. So that's why I didn't give it much of a thought. Usually I do films, obviously when, suddenly a song comes up, we check for a lot of parameters, a good team. So when Kumar Sanuji's name was a big factor, because I've always loved his songs. And it's not like one or two songs, like all of his music is amazing. And everyone knows him. I think whether I grew up in the Gulf or in India, throughout the world, I think he's famous. But I think you must have been pretty young, because Kumar Sanu, he was a rage in the 90s.
Yeah, that's what I till said. I 90s. follow old music as well. So I follow music which is behind my era as well. That's why I like know songs from the past to present, but I prefer like little older music or meaningful lyrics. And how delighted are you to be associated with this track? See, I think the track looks very beautiful, and it's a very nice song, very different, very soft, melodious. So it was very lovely to have a nice experience here, working with a team here, because I generally work in the south. So it is a beautiful experience. And obviously the song is like, I would say, like a ballad, and it's very human. Everybody goes through it. Without getting too much into your personal space, what does Parvati do when she's had a heartbreak or for any kind of reason? I listen to music. Any particular I think music there? I will listen to this song when I'm my next breakup. Usually when you have a heartbreak, then I would listen to rock music. Okay. Guns N' Roses and Def Leppard and stuff like that. Yeah. Was it something like this for you? See, I like all kinds of music, but I think something like this will work for me more than Guns N' Roses when I have a heartbreak. And When obviously, it's a beautiful heartbreak, like when the love is still there. When I'm angry, maybe I listen to Guns N' Roses. and obviously, I think Hindi audiences got to see you in '83. That film, from a cricket connoisseur point of view, I simply loved it. And but unfortunately, I think what transpired kind of really surprised cricket connoisseurs like me. But if being a part of that film, you played Gavaskar's wife. So how did you, take that feedback? That were you stunned that, why people didn't really warm up to this film? See, for me, that movie was about the experience of working with a team like that for a very cult film. I never, even while shooting, I knew this is not one of those regular commercial films. I didn't expect that also. There's not a single commercial song, there's nothing. It's a very raw, normal cult film, very realistic movie. So I expected it to be more of, something getting awards, recognition, and that's about it. So anyone who was invited to be a part of the film did it just for being a part of that film. Because as a regular commercial film, I might see many more aspects before I choose it, like how I choose the South. Yeah. I might not even do a multicast film. But here, being a small part, there are so many people in the movie. It was still nice because some movies have the experience, and this was a beautiful experience. Already you're an established name down south. Obviously you did this film and you said it was an experience. So now do you think it has kind of still, do you think this movie will still open up other avenues for you in Hindi cinema? I don't know about that. I have to see. But I didn't do it thinking it'll open up anything, because when I heard about the film itself, I knew being a part of so many people in the movie, 4 wives, so many cricketers. I mean, we are considered primary lead cast, but still, I knew this is not going to transpire into something big. But what is meant to happen will happen, so it's okay. It will not do harm also. That's the main thing. I think from whatever I saw a little bit from the visual, I think you seem to be sharing a nice camaraderie and chemistry with Ali. Can you talk about that? So I'm working with Ali for the first time. I've met him at a couple of events, but this is the first proper experience where I was there. I've not known him well. I think through the shoot is when we got to know. But I think the song was so powerful that it was effortless. We could shoot it like very comfortably, of course knowing help, but we were very comfortable, and I think it was a very pure love song, no? It's a very pure emotion, so you feel good about it. Thanks. Visuals. Come, no? Is that your side too? Which is your better side? दोनों साइड इनका अच्छा होगा. We just do a picture together also. Ramji. Yes. कितना समय है? Bites करें? किसको मारा है?
बिकॉज कुमार जी के गाने हम तब से सुन रहे हैं जब से हम इतने से थे, स्कूल में थे, है ना। स्कूल की वो सबसे खूबसूरत लड़की जो कभी किसी को नहीं मिलती है, उसे डेडिकेट करते थे हम वो गाने, है ना। जो हमेशा ही होता है, सबके साथ ही होता है, स्कूल की क्रश सबको सबसे अच्छी लगती है यार, लेकिन वो किसी को नहीं मिलती। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और उस वक्त हम कुमार जी के गाने उन्हें डेडिकेट करते थे। तुम सा कोई प्यारा कोई बस अकेले में रोते थे यार, ये मिल जाती काश, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ऑफ कोर्स बड़े होने के बाद कभी सोचा नहीं था कि मुझे उनके गानों पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, एक्ट करने का मौका मिलेगा, लिप सिंक करने का मौका मिलेगा। So it's definitely one of the checklist done today. So I'm very very happy. राम जी very close friend. बहुत सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को. One of the most talented, hard-working guys I know in the industry. So thank you so much for giving me such a great song with a legend. Parvati is such a beautiful co-star, so pretty, so beautiful, plus superbly and amazingly talented. So मज़ा है पार्वती के साथ भी काम करके। अली, आपने जिक्र किया कैसे कि उस मैं भी शायद 80s 90s का आई ब्रॉट अप इन दैट एरा, और जो कुमार जी उदित जी के जो गाने होते थे मतलब वो एक प्रपोजल सॉन्ग भी बन जाते थे कि जब हम जाहिर है इतनी हिम्मत नहीं होती थी किसी को 3 शब्द 2.5 अक्षर कहने के। तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस याद है, मैंने जादू तेरी नज़र उदित जी का था खैर, बट वो गाना प्ले किया था, बट ऑब्वियसली रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था। और फिर जब दिल दुखता था तो फिर मैं रॉक म्यूज़िक सुनता था। तो अगर आई डोंट नो, ऑब्वियसली विदाउट गेटिंग टू मच इनटू योर पर्सनल स्पेस, कुमार जी के गाने रोमांटिक सॉन्ग्स हैं जो दिल को छूते हैं, और जो एक दुख भरे बैलेट्स भी उन्होंने कई गाए हैं। कुछ आपको आपके यादगार गाने कुछ आपको याद है, उनके बारे में बताना चाहोगे? यार मेरा फेवरेट गाना वही है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम चुरा के रोया। तो इतने सारे वेरिएशंस हैं उनके गानों में, फ्रॉम डांस नंबर्स टू रोमांस टू दिल जलो के लिए। तो इतने सारे वेरिएशंस सिर्फ कुमार जी ही कर सकते हैं, और आई थिंक आज के जितने भी सिंगर्स हैं उन्हें वो सीखना चाहिए, रादर देन यार ये ट्रेंड में वो एरो दिख रहा है तो चलो वही एरो को फॉलो करना है और वही करते जाना है। उससे गाना, मतलब मैं एक डीजे भी हूँ तो मैं वो एरो की वजह से कभी वो गाना कभी बजाता नहीं हूँ। मैं ये नहीं सोचता, वो फिर मुझे दिल को छूना चाहिए तो ही मैं वो गाना परफॉर्म करता हूँ या प्ले करता हूँ ताकि ऑडियंस को मजा आए। अली, आपने कहा ऑब्वियसली आप खुद भी डीजे हैं, और ये दौर ऐसा है जहाँ सिनेमा में म्यूज़िक की अहमियत पहले जैसे नहीं रही है। क्या आप मानते हैं कि शायद ये भी एक कारण है कि आज लोग सिनेमा घरों में इतना नहीं जाते, कि जो भी संगीत पहले था वो अब रहा नहीं? यार उस वक्त ना बहुत प्योर और बायस तरीके से लोग रियाज करते थे, स्ट्रेस नहीं होता था, है ना। वहाँ से मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में जितने भी एक्टर्स हैं या जितने भी सिंगर्स हैं वो अब भी कभी ये सोच सकते हैं यार मैं एक दिन लेजेंड बनूंगा, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आज के जितने भी बड़े से बड़े ट्रेंडिंग स्टार्स ले लो, चाहे बॉलीवुड की बात कर लो, चाहे किसी भी एरा किसी भी जॉनर की बात कर लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यार ये लेजेंड बनेगा। कोई बोल सकते नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन उस वक्त से जो लेजेंड्स निकले हैं वो इसलिए निकले क्योंकि तब के गाने हम आज भी सुनते हैं, है ना। तब की मूवीज आज भी जब देखते हैं तो यार अच्छा लगता है ना। मतलब दिल अपने आप धड़कना शुरू करता है जब DDLJ देखते हैं, है कि नहीं। भले प्यार एक ही बार होता है, ये सब झूठ बोला गया था, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्यार बार बार होता है। लेकिन वो जब भी आप सोचते हो सुनते हो तो दिल को बड़ी ठंडक सी महसूस होती है। लेकिन आज की जो डायलॉग्स हैं, आज की जो चीज़ें हैं वो इट्स नॉट वेरी मेलोडियस, तो आई थिंक और जो लिखावट है, अच्छी लिखावट जिसे हम कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। बड़ी सिंपली चीज़ें होती है गानों में, मतलब जो मैं भी समझता हूँ आप भी समझते हो, यार कोई गाने को हिट करना है तो 2 राइमिंग वर्ड डाल दो या 2 ये कर दो, बड़ी शॉर्टकट्स होती है म्यूजिक इंडस्ट्री में भी, है ना, जो मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आई एम श्योर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट। यू मेंशन द वर्ड लेजेंड, जैसे अगर आप मुझसे पूछे बतौर दर्शक, तो जो हमारे पुराने ग्रेट एक्टर्स हैं, तो जैसे किसी का भी हम नाम लेते हैं तो पहले फिल्में नहीं आती, जो उनके यादगार गाने हैं वो है, मतलब वो गाना हीरो का हो जाता है या हीरोइन का हो जाता है, लेकिन मतलब हमें पता है कि ये गाना इस महान सिंगर ने गाया है, लेकिन पहली पहचान उस हीरो को चली जाती है। तो इस चीज़ पे आप कुछ अपनी कमेंट करना चाहेंगे? मैं ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यार
कभी कभी जैसे कुमार जी उनकी जो वोकल है वही एकदम अलग है ना। आजकल की भी बहुत सारे जो सिंगर्स हैं जो बेहतरीन गाते हैं लेकिन वो उनकी वोकल पे नहीं गाते, वो किसी और के वोकल को कॉपी करना जानते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि यार मैं इसके वोकल में गाऊंगा तो मैं गाना हिट हो जाएगा, मैं आतिफ के वोकल में गाऊंगा क्योंकि आतिफ यहाँ पे है नहीं तो गाना हिट हो जाएगा, है ना। तो यू नो नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीवन इन पर्टिकुलर, पर ये एक तरीका है शॉर्टकट का जो बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स करते हैं जो नहीं करना चाहिए। इज व्हाट आई फील। अरे आपके साथ इतने लवली प्रोड्यूसर्स हैं आपके जिन्होंने सबसे पहले इनका बर्थडे है एंड थैंक यू सो मच कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जस्टिफाई कर सकूं एज एन एक्टर कुमार जी के आवाज़ पर, उनके गानों पर, यू नो। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस सॉन्ग। He is getting younger day by day. है ना। अच्छी बात है। नादिर जी क्या कहेंगे? सॉन्ग में Ali is looking really Really beautiful और जो justify किया है गाने के साथ amazing। और मेन तो कुमार शानू आ गया हमारे साथ, UWF से जुड़ गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा होना है। जितिन जी आप बर्थडे इतना स्पेशल मोमेंट है, स्पेशल गाना रिलीज हुआ है, हाउ हैप्पी आर यू? ये गाना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए से मतलब 90s के दौर में आ गया हम लोग ये गाना सुन के, ऐसे गाने बनते नहीं है इस टाइप के। कुमार शानू जी भी बहुत टाइम बाद मतलब इतना अच्छा सॉन्ग गा रहे हो। हमारे साथ में जुड़े कुमार शानू जी का पहला वीडियो किए उनके साथ में। नली तो यार बोलना नहीं पड़ता, अली का तो क्या एक्टर में हैंडसम होते यार दिन भर नहीं और फिर भी वो आप लोगों का प्यार है यार। दिल रो रहा है लेकिन चेहरा खिल रहा है। So happy birthday and many congratulations to you. I think your story itself is inspiring, I would say, so that's all. Thank you। You know, just keep backing good music, good talent, good content. You know, because I think simplicity is what connects. इससे टैलेंट क्या होगा यार, इतना बढ़िया ये बेस्ट ऑप्शन था ये। थैंक यू। आपके पास अली और क्या चाहिए? अली आएगा ना, साथ में रहेंगे आप, कंपनी के साथ में ही है, अली का कंपनी है वो। Thank you so much. मेरा एक और बहुत ही खास दोस्त आया यहाँ पर, शिवम धूमवाम। लॉकअप में हम दोनों साथ में थे। लोगों ने देखा होगा कैसे कांग्रेस ने बहुत अच्छा गाना बनाया आपने कांग्रेस भाई, बहुत ही अच्छे से मतलब मैंने गाना सुना भी है और देखा भी है। और कुमार शानू जी जो लेजेंड है हमारे, उनकी आवाज़ मैंने जब उसने मुझे कल परसों पहले मैं उसको बताया था भाई सॉन्ग करो, मैं कौन सा था, देखा कुमार शानू, मैं कहा चुरा के दिल मेरा, वो चुराना नाचना शुरू कर दिया, घर पे चिल कर रहे थे। इतना शौक, मैं कहा वाह ब्रो, मतलब तूने मतलब भाई भाई होता है कि आप तूने जैसे शिव ठाकरे और एमजी स्टैंड का कहता है कि ट्रॉफी मंडली दोनों में से कोई भी उठाए, वैसे भाई ने किया कुमार शानू साहब के साथ गाना ना, और मेरे को मुझे लग रहा है मैंने कर लिया, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी शायद आ रहे हैं आगे गए चले नहीं बट बहुत अच्छा गाना है और हमारी जनता को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी एली मर्चेंट है और अल्लाह का बंदा तो बहुत ज़्यादा कामयाबी भाई को खुश रहो, आबाद रहो। बाकी खूबसूरती का राज तो है ये, मतलब इतने दिल जला रखे इसने लोगों के, तो कहते हैं इसके लिए शायरी अर्ज करता हूँ। इरशाद नहीं, ये जो आजकल लड़की है ना, इसके आगे पीछे बहुत एली मर्चेंट सॉन्ग्स होते हैं, तो कमेंट्स ही कमेंट्स लड़कियों के, मतलब अगर 125 कमेंट होते हैं इसके पोस्ट पे ऊपर, तो उसमें 100 लड़की होती है, 25 लड़के होते हैं। कहते हैं, तो ये कहता है कि हमारा भाई कहता है कि इश्क से गुजरता है, तो कहते हैं कि हम भी इश्क से इस तरह हम भी इश्क में इस तरह गुजर जाएंगे, मोहब्बत बीचों बीच खड़ी रहेगी और हम सामने से निकल जाएंगे। भाई को दिल चला हमारा बंदा, तो खुश रहो, परफेक्ट गाना मिला एकदम, बहुत आगे भी तरक्की करो, खुश रहो। Take care, भाई। चलो आज थैंक यू सो मच। Company will also join with this picture. And Mayan. राम जी भाई, And Shreya. सब प्लीज कम। Girl, please join in. Okay, so like I'll go with like I'll stand. You're so lucky, no? Yeah. Thank you।
चलिए guys, rolling. Rolling. Yes, roll. फर्स्ट तो मैं अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी और आगे सबको सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी क्योंकि सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ लाइक मैं आज ही लैंड हुई और अभी आई हूँ तो मुझे मैंने मिस कर दिया कुमार सानू जी को मिलना तो आई वॉज फील लिटिल गिल्टी कि अरे मैं क्यों जल्दी नहीं आई बट आई वॉज वेरी बिग फैन कुमार सानू जो मैं शायद छोटी हूँ तब से मैंने सुनते आई हूँ उनके गाने और मैं बहुत खुश हूँ कि वापस से मुझे उनके गाने वो भी रोमांटिक गाने सुने सो मैं सबको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी अगेन लाइक दैट सॉन्ग बहुत आपका रोल अप्रिशिएट करें. थैंक यू सो मच या आई नो लाइक मुझे ये नहीं था कि लाइक तेलुगु इज लाइक टफ फॉर मी बट आई नो वहाँ के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे डायरेक्टर्स ने प्रोड्यूसर्स ने काफ़ी उन्होंने लर्न किया एंड एवरीवन जब उन्होंने लाइक अब तो हिंदी में भी आ गई है और सब जब फ्रेंड्स लोगों ने कमेंट्स पास किए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बोला तो आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज हैप्पी बिकॉज ये मूवी वॉइस वाइज रिलीज होगा इन तेलुगु एंड हिंदी so I was happy. Thank you. कैसे जीता अच्छा नेक्स्ट टाइम हॉट ड्रेस पहन के आऊंगी तो बहुत सारी अब तो जल्दी जल्दी पहनूंगा तो नेक्स्ट टाइम हॉट ड्रेस पहन के आऊंगी सेंटर लो रोड रोड राम जी का गाना डायरेक्ट किया उन्होंने रिलीज हुआ सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ और जसीन जी को हैप्पी बर्थडे कि आज उनका जन्मदिन है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बट मैं थोड़ी सी लेट हो गई आने में क्योंकि मैं कुमार सानू जी का मैं हमेशा से उनके गाने सुनती थी और हमेशा सुनती हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बट मैं थोड़ी सी लेट हो गई मैं उनसे मिल नहीं पाई तो मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा गम है बट कोई नहीं एंड पूरी टीम को आप सभी को और राम जी का गाना है तो मतलब कोई डाउट नहीं है हमेशा उनका गाना अच्छा ही होता है तो यस थैंक यू